Hello students, my name is Kiran Chauhan. Hope you are well. Today we will learn Science of Class 5th. Lesson number 3, the skeleton and muscular system. So listen carefully. The skeleton and muscular system. Our body is supported by a framework of bones. Without this framework, we would not be able to stand erect and we may just collapse. This bony framework within our body is known as skeleton. हमारी बॉडी में जो बोनी फ्रेमवर्क होता है उसको स्केलेटन कहते हैं. बोन्स का जो फ्रेमवर्क होता है वो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है. इसी फ्रेमवर्क की वजह से हम लोग स्टैंड कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं. A new baby born has more than 300 bones. As he grow older than some bones join together. The skeleton of an adult has 206 bones. The outside of the skeleton is covered with muscles and skin. एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें 300 से भी ज़्यादा बोन्स होते हैं. जैसे ही वो ग्रो करने लगता है उनकी कुछ बोन्स एक दूसरे से ज्वाइन हो जाती हैं. और जो अडल्ट होता है उसमें 206 बोन्स होते हैं और उनकी स्केलेटन मसल्स और स्किन से कवर्ड होते हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर द स्केलेटल सिस्टम. स्कल, collarbone, shoulder bone, humerus, ribs, spine, breastbone, hip bone, thigh bone, shin bone, calf and toes. These are the parts of skeletal system. Structure of bone. Bones are made of minerals, mainly calcium and phosphorus. On the outside, bones are very hard. The inside of bones contains jelly-like material called the bone marrow. New blood cells are produced in the bone marrow. Bones are living and can mend themselves if broken. बोन्स जो होते हैं कैल्शियम से, मिनरल से और फास्फोरस से बनता है. और जो एक बोन होता है उसका जो आउटसाइड पार्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है और इनसाइड पार्ट एक जेली जैसा मटेरियल होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं. न्यू ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं. एंड पार्ट ऑफ स्केलेटन. The human skull consists of skull, backbone, ribcage, limbs, and girdles. The skull gives shape to our head. It protects the brain. It has holes for eyes, nostril, mouth, and ears. The upper part of the skull is made up of 8 flat bones interlocked together. Face is made of 14 bones. The lower jaw bone is the only moving bone in the skull. Skull होता है वो हमारी हेड को शेप देता है. ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. स्कल में एक आईज के लिए, नॉस्ट्रिल्स, माउथ और एयर्स के लिए एक होल होते हैं. अपर पार्ट जो स्कल का होता है उसमें 8 फ्लैट बोन इंटरलॉक्ड होते हैं एक दूसरे से. फेस में 14 बोन्स, जो फेस होता है वो 14 बोन से बना होता है. द नेक्स्ट इज बैकबोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन. द स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन. देयर आर 33 small bones called vertebrae which are joined together and form a strong column called vertebral column. जो बैकबोन होता है उसको स्पाइन भी कहते हैं. जो स्कल है वो स्पाइन से या बैकबोन से अटैच होता है. इसमें 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. छोटे छोटे होते हैं जैसे जो स्ट्रॉन्ग कॉलम होते हैं जिनको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. ईच वर्टिब्रे हैज अ. इन्हीं वर्टिब्रल जो कॉलम होता है इन्हीं की वजह से हम लोग बैंड कर सकते हैं और बैक को ट्विस्ट कर सकते हैं. ईच वर्टिब्रे हैज अ होल इन द इट थ्रू विच द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड passes. The spinal cord is an extension of the brain. Many nerves branch out from the vertebral column protect the delicate spinal. जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज द रिब केज. The rib cage is made up of 12 pairs of curved ribs. They are attached to the backbone at the back and breastbone in front. The lowest 2 pairs of the rib are joined only to the backbone are called floating ribs. The rib cage protect the heart and the lungs. जो rib cage होता है वो curved ribs के 12 पेयर से बनता है. ये बैक के बैकबोन और ब्रेस्ट बोन के फ्रंट से अटैच होता है. और जो लोवेस्ट 2 पेयर होते हैं रिब्स के जो केवल बैक को अटैच करता है इसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं. और जो रिब केस है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है. एंड द नेक्स्ट इज द लिम्स, आर्म्स एंड हैंड.
The arms or the forelimbs are joined to backbone spine by the shoulder blade and the collarbone, which make up the shoulder girdle, pectoral girdle. जो आर्म्स होते हैं और फोरलिम्स होते हैं वो बैकबोन से, शोल्डर ब्लेड और कॉलर बोन से ज्वाइन होते हैं, जो शोल्डर ग्रिडल बनाते हैं, जिसको पेक्टोरल ग्रिडल भी कहते हैं. और जो अपर आर्म होता है, जो सबसे लॉन्ग बोन होती है, जिसको ह्यूमरस कहते हैं. और फोर आर्म में 2 बोन्स होते हैं, जिसको रेडियस और उल्ना कहते हैं. हैंड में 27 बोन्स होते हैं और रिस्ट में 8 बोन्स होते हैं और पाम में 5 बोन्स होते हैं और फिंगर्स में 14 बोन्स होते हैं. Legs and feet. The bones of the lower limb are attached to the girdle, pelvic girdle with a ball and socket joint. The powerful thigh bone of femur is the longest bone of our body. It bears the weight of the whole body. The lower half of the leg has 2 knee bones, the tibia and the fibula. जो बोन लोअर लिम्स मीन्स जो लेग्स होता है, लेग्स की जो बोन्स होते हैं वो हिप ग्रिडल से अटैच होते हैं, जिसको पेल्विक ग्रिडल भी कहते हैं. और इसमें बॉल और शॉकेट जॉइंट होता है. थाई बोन जो होती है, जिसे फीमर भी कहते हैं, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी में. ये बहुत पावरफुल होती है. ये हमारी पूरी बॉडी को सहन करने की पावर होती है इसमें. और लोअर हाफ ऑफ द लेग में 2 नी बोन्स होते हैं, जिसको टीबिया और फैबुला भी कहते हैं. द नी बोन्स जॉइन एट द एंकल, ईच वुड द 26 बोन, 7 बोन इन एंकल, 5 बोन्स इन द इंस्टेप एंड 14 बोन्स इन द toes. And the next is the girdles. There are 2 pairs of girdle. A pair of pectoral girdles that form the shoulder. A pair of pelvic girdle that form the hip. एक जो pectoral girdle होता है वो shoulders में होता है और जो pelvic girdle होता है वो hip में होता है. अपर लिम्स जो होता है वो पेक्टोरल गिर्डल से अटैच होता है और जो लोअर लिम्ब होता है वो पेल्विक गिर्डल से अटैच होता है. Function of the skeleton. It has 4 major functions. It gives shape, support and stand to our body. ये हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है और बॉडी को स्टैंड देता है. It gives protection to delicate part of the body. ये जो delicate part होते हैं हमारी बॉडी में उसको प्रोटेक्ट करता है. The skull protect the brain, the backbone protect the spinal cord, the rib cage protect the heart, lungs and liver, and hip bones protect organs like the kidney, bladder, etc. And the muscle attached to the bone make movement possible. Calcium and phosphorus are stored in the bones which make the bone firm and strong. जो स्केलेटन होता है वो जो डेलिकेट पार्ट होते हैं, जैसे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, रिब केज हार्ट, लंग्स और लीवर को प्रोटेक्ट करता है, और जो हिप बोन है वो किडनी, ब्लैडर को प्रोटेक्ट करता है. और जो मसल होते हैं वो बोन से अटैच होते हैं और जो बोन में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं वो उनको स्ट्रॉन्ग और फर्म बनाते हैं. और जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में जैसा वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ये बोन मैरो से बनते हैं. लॉन्ग बोन्स में आर्म्स हो गया और लेग्स हो गया, इनके अंदर जो बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जिसको बोन मैरो कहते हैं. And the next is joint. A joint is the meeting point of 2 bones. The bones are held together by strong tough tissue called ligament. 2 bones जहां पे मिलते हैं उसे joint कहते हैं. और जो bones है वो strong और tough tissue को held करके रखता है जिसको ligament कहते हैं. और there are many joints which allow different types of movement. Only the joint in the skull do not allow any movement. The bones in the skull are interlocked, making the joint immovable. The movable joint. 4 types of movable joint in our body. First, pivot joint, ball and socket joint, hinge joint, and gliding joint. First, what is pivot joint? The pivot joint is the found between the skull and the first vertebrae of the spine. The first vertebrae in the spine is called Atlas, named after the Greek god who is said to carry the globe on his shoulder. Pivot joint allow the skull to be moved sideways, upward and down. जो पाइवोट जॉइंट होता है वो स्कल और जो स्पाइन का फर्स्ट वर्टिब्रे होता है उनके बीच में होता है. फर्स्ट जो वर्टिब्रे होता है स्पाइन का उसको एटलस कहते हैं और ये ग्रीक गॉड के नाम से पड़ा है. जो पाइवोट जॉइंट होता है वो स्कल को अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड में मूव करने में हेल्प करता है.
And the next is the ball and the socket joint. Ball and socket joint found in the hip and shoulder. जो ball और socket joint होता है वो hip और shoulder में मिलते हैं. In this type of the joint, ball shaped end of the long bone hits into cup shaped and socket of the other bone in all the maximum movement displayed by wallet dancer. जो बॉलेट और सॉकेट वो होते हैं इसमें फर्स्ट बोन तो कप शेप का होता है और दूसरे जो बोन होती हैं वो बॉल शेप में होते हैं जो एक दूसरे से फिट होते हैं, इसलिए इनको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं. नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट. द हिंज जॉइंट अलाउ द बॉडी पार्ट टू मूव इन ओनली वन डायरेक्शन. जो हिंज जॉइंट होता है वो बॉडी पार्ट को ओनली वन डायरेक्शन में मूव करता है और ये हिंज जो जॉइंट होता है ये डोर और विंडो की तरह काम करता है. और नीज एंड एल्बो हैव हिंज जॉइंट. You can bend your legs backward and knee, but you cannot bend the leg upward at the knee. हम अपने लेग को बैकवर्ड की साइड बेंड कर सकते हैं लेकिन उसको अपवर्ड की साइड नहीं मूव क्योंकि ये हिंज जॉइंट है. Next is the gliding joint. The gliding joint allow a movement between the connecting movement. These are found in the wrist, ankle and also between any two vertebrae of the spine. जो gliding joint होता है ये wrist, ankle और टू वर्टिब्रे स्पाइन के जो वर्टिब्रे हैं उनके बीच में मिलता है. ये जहां दो बोन्स कनेक्ट होते हैं वहां पे इसका मूवमेंट होता है. द नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम. द बोन इन द बॉडी डू नॉट मूव द देमसेल्व्स. मसल्स आर मेड ऑफ टफ प्लास्टिक टिश्यू. दे आर अटैच्ड टू द बोन बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन. हमारी बॉडी अपने आप से या बोन से मूव नहीं कर सकती है. बॉडी को या बोन्स को मसल्स की जरूरत होती है. बिना मसल्स के बॉडी मूव नहीं कर पाएगी. तो मसल्स जो हैं वो टफ इलास्टिक टिश्यू से बनते हैं और ये अटैच होते हैं स्ट्रॉन्ग फाइबर से जिससे टेंडन्स कहते हैं. दे आर अबाउट 640 मसल. और हमारी बॉडी में 640 मसल्स होते हैं. एक अगर हमें किसी इसमें मूव करने के लिए वन डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें 2 मसल्स की जरूरत होती है. एक मसल पुल करने में और एक मसल को बैक करने के लिए. टू मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन एटलीस्ट 2 मसल आर रिक्वायर्ड. ईच मूवेबल जॉइंट हैज two set of muscles, one to pull the bone up and other to pull the bones back. For example, when you want to raise your arm and the bicep muscles above the arm contract and pull up the arm to lower the arm, the tricep at the back contract. For example, आप अपने आर्म्स को रेज करते हैं, उठाते हैं, तो उसमें आपको 2 मसल्स की जरूरत होती है, एक पुल करने के लिए और एक बैक करने के लिए. सो आर्म को रेज करने के लिए 2 मसल्स की जरूरत होगी, एक पुल और एक आर्म को डाउन करने के लिए. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मसल. द मस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट 3 टाइप्स ऑफ मसल: वॉलेंट्री मसल, इनवॉलेंट्री मसल एंड कार्डियक मसल. Voluntary muscle. The muscle in our body whose action are under our control are called voluntary muscles. ऐसे मसल जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी खुद से कंट्रोल करती है, that is called voluntary muscle. The muscles attached to our skeleton are voluntary muscle. Their cells have band or strips on them. This is why they are also called strip muscle. इनमें strips होते हैं और band cells होते हैं जिसे इनको stripped muscles भी कहते हैं. Second is involuntary muscle. The muscle in our body whose action are not under our control are called involuntary muscle. ऐसे muscles जिन्हें हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती है, that is called involuntary muscle. They work automatically. ये अपने आप ही काम करते हैं. Our blood vessel, stomach, food pipe, intestine are some part with involuntary muscle. Involuntary muscle are short and spindle shape. They are without bands and therefore called smooth muscle. इसीलिए जो इनवॉलेंट्री मसल होते हैं इसमें ये शॉर्ट और स्पाइंडल शेप के होते हैं, इसलिए इसको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं. Next is cardiac muscle. Cardiac muscles are the muscle of the heart. They will walk all or lie pumping blood throughout the body without getting tired. जो कार्डियक मसल होते हैं वो हार्ट के जो मसल होते हैं उनको कहते हैं. कार्डियक मसल जो होते हैं वो वॉलेंट्री मसल जैसे होते हैं लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं. The next is function of muscle. Muscle produce movement in body by pulling on bones. Muscles का क्या काम होता है? हमारी जो बॉडी में बोन्स होते हैं उसको पुल करने में, उनको मूवमेंट करने में यूज होता है. Due to these movement
वी आर एबल टू वॉक, रन, डांस, राइट, स्मार्ट, जंप एंड कैरी थिंग्स। और ये हमारी मसल्स जो हैं अगर हमारी बॉडी में है तो हम मूवमेंट कर पाएंगे। ये वॉक, रन, डांस, राइट, स्माइल, जंप एंड कैरी थिंग्स एटसेट्रा, ये हमारे काम। इसीलिए हमारी बॉडी में बोन्स के साथ साथ मसल्स की भी बहुत जरूरत होती है। थैंक यू। आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर अंडरस्टूड।